Moving ahead, I would like to request Mr. Rajneesh, the Senior Vice President of IATO, to please come up on the stage and share his thoughts. Already a lot has been said, so I don't want to be in between a lovely evening, but I'll just still sum up in a few words. Along with Mahir, I'll also mention Ravi Singh, who is not only a very good administrator but also a good finance controller who's been running the show and with Mahiti doing the marketing and operations. So kudos to both of you and your team. That's the first one. In my 40 years of career, I must have done a teen number of FAM tours within India and abroad. And I must compliment the fact it's one of the best I had in the sense of organizational setup, the programming, the itinerary, the visits, and the support team. So kudos to you guys. Coming to Andaman, there are only two places which are left I haven't visited in India. One was Andaman, and the last one is Tripura. So after doing Andaman, my perception has changed. I have not sent more than 10 guests in over last 25, 30 years. But yes, first one I sent the foreign tourist, that was a Britisher, in 1997 to the Port Blair, and it was with the ITC hotel at that time, the only one. And since then, it's been a long journey. In today's date, I can confidently say that Andaman is ready to receive foreign tourists with all the details. We already have, I understand, 13, 14, or 15 flights, and yesterday Chief Secretary mentioned that we're looking at during season around about 27 flights coming into Andamans this season from October onward. Ravi already mentioned, as Chief Secretary said, the seaplanes to come in for the nearby places. So, which will add a lot. Domestic tourism is a base of pyramid for foreign tourists. So, a lot of domestic tourism has come over the years. Infrastructure has more or less has come up. Lot need to be desired, but as I say, it's a process which goes on. There's always room for improvement. There are excellent hotels, what we saw at Havelock, at Neil, the beaches, including the Blue Flag Beach at the Radhanagar, which in itself is an excellent, and even the beaches at the CGH Hotel or at the Seychelles Hotel, bearing the low tide, but yes, these facilities are there, and at the Neil Island, which is a public beach near the jetty, I also found it to be very good. Thank you very much, sir. Now I request Mr. Sanjay Rajasthan, the Vice President of IATO, to come up on the stage and share a few words with us. Gosai, President IATO, Mr. Jadwet, our chapter chairman, dignitaries and friends from Andaman and Nicobar Islands, my colleagues and members of IATO, good evening to you. Well, friends, what can I say? It's like, I would like to start to what our President, Mr. Ravi Gosai, said, that he had suggested to Mahi to do this FAM trip in style. And I think what we experienced the last few days, I think both Ravi and Mahi have done it in great style. I think we should give them a round of applause. Well, these have been really incredible 5 days, and it gives me immense pleasure to share how wonderful this FAM trip has been. I'm sure all the friends from and the members of Indian Association of Tour Operators have experienced the same thing what we have experienced and what I have experienced. These have been really incredible 5 days, and eye-opener for all of us. We have experienced not just the breathtaking beauty of Andaman and all these islands we visited, be it Swaraj Deep, Shahid Deep, and today we visited some different locations
which actually, I'm sure most of us, we didn't know about Baratang and the other places we visited today. Though it was a long day, but I'm sure we all enjoyed it. Andaman and Nicobar Islands have definitely a big, apart from the beauty, the natural beauty of what God has offered this country and this place, there's a lot of richness in their culture as well. We have seen the historical monument of the Cellular Jail, which adds to the beauty. On behalf of all of us, members of IITO, I extend the heartfelt thanks to Andaman experts for and their team for doing such a wonderful, fabulous job. They have been taking care of us, and we have really enjoyed this fam trip. And we'll definitely take back some amazing memories with us. And I can assure you all, on behalf of Indian Association of Tour Operators and our members, that we'll take these memories back home, and we'll definitely take these memories to our partners around the world and promote these destinations so that foreign tourists come here in large numbers, so that we justify this fam trip. Thank you so much, sir. Thank you so much, Team IITO. Moving ahead, may I now invite the respected chapter chairman, Mr. Muhammad Chadwick, the owner of Macros, to brief Andaman as destination and then share a few words about his product. Good evening, everyone. I think a lot has been said about the islands, and you have experienced it firsthand. And what needs to be corrected in our portfolio is the percentage of foreign tourists visiting the islands. I think we are heavily into domestic tourism, and hardly any foreign tourists are coming here. And I think this initiative with the inbound operators, the leading inbound operators of the country being here, and IATO publicizing this throughout their 2000 odd members, will change this scenario hopefully in the near future. As far as the local industry is concerned, I think a lot of investment has been done. We started our ferry in 2009, and we are now got 3 ferries. Hopefully we should be adding one more towards the end of this year. And other private players have also come in, and the industry of the ferry industry has grown. Hotels are coming up, new hotels are coming up by local entrepreneurs. We have some very good local brands now, and national brands have also started coming in. And hopefully we'll be getting into many more sectors of the tourism industry, especially related to marine, maybe yachts, maybe cruise tourism, which will add a lot of good portfolio for selling. And I hope with the support we have received from this fam trip, we will be able to do justice. And I thank Andaman experts for having organized this fam trip for all the inbound operators. Thank you so much. Now I invite Mr. Tanveer from Symphony Groups, and may I request Mr. Sanjay Razdan to do the honors. Mahi ma'am, please come up on the stage and join the hands. I request Mr. Tanveer to say a few words. Good evening, one and all present here. A very warm good evening to all dignitaries and members on this trip and IITO office bearers. I'm glad I'm getting this opportunity tonight to stand and have a conversation with all veterans and pioneers in the tourism industry. Hope our hospitality was well on spot and you'll take back good memories and cherish it. We are really looking for long-lasting partnerships and new ideas so that Andaman as a destination can be evolved. Like how Kerala was once, and I guess all of you had a major role in bringing it where it is, God's own country. So this is also a heaven on earth. So let's promote Andaman together. I'm really looking forward to more fruitful discussions
and thoughts and ideas that how do we place Andaman on the global map. So thank you all for visiting Andaman and Nicobar Islands, and thanks from the Symphony team. We all would love to see you again. Thank you. सबसे पहले तो हमारे साथ 20 टूर ऑपरेटर आए हैं जो लोग इनबाउंड टूरिज्म करते हैं। इनबाउंड टूरिज्म का मतलब होता है जो विदेशी हमारे देश में आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। 5 दिन हम लोग को यहाँ पे हो गए और हम लोग आपका पोर्ट ब्लेयर के अलावा स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और बारातांग भी गए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जितने भी टूर ऑपरेटर आए सब नए नए पैकेजेस बनाएंगे अपने क्लाइंट्स के लिए और प्रमोट करेंगे दुनिया भर में। सो हमारे जो टूर ऑपरेटर्स मेंबर हैं ये दुनिया भर जाते हैं प्रमोशंस के लिए। तो अब अंडमान उनके प्रोग्राम में आएगा, उनकी वेबसाइट पे आएगा, तो अंडमान को एक अच्छा फीचर मिलेगा प्रमोशन के लिए। पर्सनली मेरा ये फर्स्ट टाइम अंडमान, मतलब ये कोई खुशी की बात नहीं है। अनफॉर्चुनेट दैट आई वाज नॉट हियर फॉर लास्ट 26 ईयर्स। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा अंडमान और इसकी खूबसूरती खासकर मुझे बहुत दिल को छू गई। मुझे ऐसा लगता है और अब मैं खुद भी काफ़ी प्रमोशन करता हूँ, टूर ऑपरेटर कंपनी चलाता हूँ और डेफिनेटली हम लोग बेचते थे अंडमान बट बहुत दिल से नहीं बेचते थे। बट मुझे लगता है कि आज के यहाँ से ट्रिप करने के बाद अब दिल से हम इसको प्रमोट करेंगे। है और मैं ऑनररी सेक्रेटरी इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है और गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी मेकिंग में और दूसरे जो हमारी स्ट्रेटजीज बनती हैं बड़ी क्लोजली काम करते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के तकरीबन 2000 मेंबर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं तकरीबन 99% जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आती हैं उसके लिए। अंडमान में आके कैसा लगा पहले बार? अंडमान में देखिए, अंडमान में आके कैसा लगा और अंडमान आने के पहले मैं क्या सोचा था मैं दोनों चीजें बताता हूँ। मैंने अंडमान को देखा गूगल मैप में, एक छोटा सा आइलैंड, और इस छोटे से आइलैंड में यहाँ पे आके मालूम चला कि कितना कुछ, कितनी धरोहर है यहाँ के अंदर, कितनी हिस्ट्री है यहाँ पर, कितनी सुंदरता है बीचेस की, वो सारी चीजें मालूम चली। तो देखा जाए तो मुझे तो अंडमान से प्यार हो गया और मुझे कॉन्फिडेंस आया है कि जो हमारे बाहर के पर्यटक हैं, विदेशी पर्यटक हैं, अगर उनको यहाँ पे लेके आया जाए तो यहाँ पे वो बहुत खुश होकर वापस जाएंगे, उनको हर एक चीज मिलेगी। और कुछ ऐसे भी विदेशी पर्यटक यहाँ पे आ सकते हैं कुछ मार्केट से, जैसे कि रूस हो गया या कुछ और कंट्रीज हैं, ईस्टर्न पोलैंड, ईस्टर्न यूरोप, पोलैंड, जर्मनी, जहाँ पे लोग यहाँ पे लॉन्ग स्टेज के लिए आ सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी ऑब्जर्वेशन है मेरी, जो कि मेरी एक सजेशन रहेगी, एक सुझाव है यहाँ के लोगों के लिए कि अगर कुछ चीजें और ऐड कर ली जाएं तो इस डेस्टिनेशन को और भी अच्छा इंटरनेशनल क्लास बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम अपने रिजॉर्ट्स के अंदर आयुर्वेदा को इंक्लूड करें और दूसरी सस्टेनेबल एक्टिविटीज को प्रमोट करें, स्लो टूरिज्म प्रमोट करें, तो ये बहुत ही जल्दी इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप में दुनिया के आ जाएगा। हम लोग लास्ट 15 ईयर से अंडमान कर रहे हैं और आज से 15 साल पहले जब मैं इस सेक्टर में आई थी तो मुझे एक चीज़ समझ में आया था कि इस सेक्टर का जो यूज़ होना चाहिए वो एक्चुअली उस तरीके से ना नहीं हो रहा है। मतलब आइलैंड हम देखते होंगे और अब यहाँ सभी को पता भी है एलटीसी के में यूज़ होता था और एलटीसी में भी लोग बस 1 या 2 दिन के लिए आते थे एंड उसके बाद फिर इंटरनेशनल टूर पे जाते थे। उनके मैक्सिमम इंटरनेशनल टूर में ही जाते थे बीचेस वगैरह के लिए। उस यहाँ के बीचेस जो एशिया का नंबर 1 बीच है, वर्ल्ड के टॉप 10 बीचेस में से एक है, विच इज राधानगर बीच, वो यहाँ पर है। कुछ काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं था इस बीचेस के बारे में, ठीक है। सो हमने वो मतलब इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई, ठीक है, वो हमने दिखाया कि यहाँ पर होना चाहिए। एंड हमारा टारगेट कभी भी एलटीसी मार्केट था ही नहीं, हमने कभी भी नहीं दिया। 15 साल पहले जो हमने स्टार्ट किया वो हमने उस मास मार्केट में टारगेट किया जहाँ पर लेजर जैसे फैमिली ग्रुप हो गए, ठीक है, एफआईटीज हो गई, हनीमूनर्स हो गए, हमने वो भी किया। एंड उसके बाद फिर हमने माइस में भी हम लेके आए मीटिंग, इवेंट, कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, वेडिंग्स भी हमने की, ठीक है। तो यहाँ पर उस लार्ज स्केल पे मतलब ये जो जर्नी रही है 15 साल की वो हमने यहाँ पर कैटर किया और हम काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे, काफ़ी क्या हम 100% सक्सेसफुल रहे। और हमें मार्केट से भी बहुत अच्छा, मतलब मार्केट इन द सेंस के मतलब इंडिया के कोने कोने से, मतलब अगर मैं बात करूँ तो गुजरात से, महाराष्ट्र से, आपका क्या कहते हैं दिल्ली से, नॉर्थ इंडिया साइड से, यूपी से, एमपी से, हर जगह से हमें काम आ रहा है आज की डेट में। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि नाउ दिस इज राइट टाइम, बिकॉज इनबाउंड मार्केट एक ऐसा मार्केट है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्लास ऑफ सर्विस उनको प्रोवाइड करानी है
उसके लिए प्रिपेयर होना। जब हम प्रिपेयर नहीं थे, नाउ वी आर रेडी, और अब हम प्रिपेयर हैं और हम उसके लिए उस दिशा में जा रहे हैं। सो दैट्स वाई हमने ये फैम ऑर्गेनाइज किया इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स का, और यहाँ पर आप देखेंगे एट टॉप जो हमारे इनबाउंड मार्केट में इंडस्ट्री में जो ऑनर्स हैं वो आए हुए हैं। ठीक है, LPTI से हैं, आपका एयरको ट्रैवल से मिस्टर गुसाई हैं, ठीक है, पैराडाइज से मिस्टर रजनीश है, मिस्टर संजय राजदान है, ये सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। सो आप देखेंगे डेफिनेटली हमें एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी, और ये ग्रोथ सिर्फ हमारे यहाँ अंडमान एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, ये ग्रोथ पूरे एंटायर अंडमान के लिए है, क्योंकि काम तो सभी को मिलेगा ना, हमें भी मिल रहा है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट में वो है, जो मार्केट में बैठे हुए वो हैं, ठीक है, जो मतलब जो पोर्टर्स जो वहां पर फेरी वगैरह पे होते हैं वो लोग हैं। तो ये एंटायर मतलब ये किसी एक का सिंगल बेनिफिट नहीं है, ये बेनिफिट पूरे अंडमान का है। सच में मैं कहूँ तो मैं इस प्रोग्राम में आकर जो आईटो और इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स के इस प्रोग्राम में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मेरा भी सोचने का नजरिया जो है बदला है। ये जो फैमिली है, जो परिवार है इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स, ये पूरे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो है काम करते हैं, और इनके यहाँ पे आने से मुझे लग रहा है कि जैसे ये आकर हमारे यहाँ पे हमारे महामहिम से मिले हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से और टूरिज्म सेक्रेटरी डायरेक्टर्स सबसे मिले हैं, उसके बाद ये अपनी पूरे जर्नी में जो भी इन्होंने देखा होगा, जो भी कमियां इनको महसूस होगी, तो मुझे लगता है कि ये जाकर मिनिस्ट्री को बताएंगे तो इसमें बहुत सारा टूरिज्म में सुधार आ सकता है। और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, जैसे मैं इनके प्रेसिडेंट जो है आईटो के रवि गोसाई जी को बात कर रहा था मैं उनसे, तो बता रहे थे कि हम कुछ ही टाइम में जो है यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट को जो है लाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरा टीम जो इनका आया है ये पूरे इंटरनेशनल टूरिस्ट का काम करते हैं। तो ये अंडमान जब ये लाएंगे हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट को, तो इससे जो हमें रोजगार और बढ़ेगी और टूरिज्म में क्वालिटी और मेंटेन होगी। जब बाहर कंट्री से लोग इधर आते हैं तो यहाँ के भी प्रशासन को जो है ज़्यादा उस पर फोकस करना पड़ता है कि कोई कंप्लेन का मौका ना आए। अभी पता चला है कि और 27 फ्लाइट्स ऐड होंगे, तो जितने आने जाने की सुविधा जो है मुख्य भूमि से जो है अगर सुविधा मिलेगी तो टूरिज्म तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और फ्लाइट्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आएंगे। और मुझे लग रहा है कि इस प्रोग्राम को देखकर कि कुछ अच्छा होने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन तो देखो कोशिश कर रही है, भारत सरकार कोशिश कर रहा है कि कैसे भी जो है जो भी कमियां अंडमान टूरिज्म में है तो उसको जो है जल्द से जल्द जो है उसको सॉल्व करे, और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अंडमान बुलाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे लोगों का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, हर चीज़ बाहर से आता है, तो और सीज़न भी जो है पूरा साल नहीं रहता है। तो हम तो चाहते हैं कि सुविधा ज़्यादा हो आने जाने की और टूरिज्म बढ़े, और यहाँ पे जो है बहुत अच्छे रेट्स पे जो है टूरिस्ट को जो है पूरा टूर पैकेजेस मिले। और साथ ही मैं माही मैम, उनके हस्बैंड जो डायरेक्टर अंडमान एक्सपर्ट्स के हैं रवि सर, सभी को, उनके पूरे टीम को जिन्होंने ये कोशिश किया आईटो को यहाँ लाने के लिए, साथ ही मोहम्मद साहब जो कि चैप्टर चेयरमैन है आईटो के, मैं सभी को, सिम्फनी ग्रुप्स को, जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर जो है टूरिज्म को आगे बढ़ाएं। मैं प्रतिमा बैनर्जी, फाउंडर डायरेक्टर नवोदय फाउंडेशन, एक्स सीनियर वाइस चेयरपर्सन म्युनिसिपल काउंसिल। और आज जो ये इनिशिएटिव लिया गया, यहाँ पे जो इनबाउंड डेलीगेशंस आए थे उनके साथ में जो एक बहुत बड़ा एक पोस्ट किया यहाँ पे माही जी ने और रवि जी ने, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, बीइंग इन पॉलिटिक्स, हमारे लिए हर चीज़ का हम एक्सपीरियंस लेते हैं, तो ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जहाँ पे मुझे ये पता चला कि जो डेलीगेट्स आए हुए हैं जो इनबाउंड है, यानी कि फॉरेन से जो है, हाँ, टूरिस्ट जो है यहाँ पे
कहीं ना कहीं ये डेस्टिनेशन प्लेस बनाया जा रहा है, और इससे क्या होने वाला है आगे जाके, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा लोकल्स के बीच में, हमारे जो लोकल्स बहुत सारे एजुकेटेड लोकल्स है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्लस रेवेन्यू जनरेशन होगा। और मुझे लगता है ये इस इनिशिएटिव के साथ में जो माही जी ने लिया है, जो रवि सिंह जी ने लिया है, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, कुडोज टू देम, कि वो लोग ने ये इनिशिएटिव अंडमान में लिया है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे द्वीप बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्लीन है, क्लीन जिसे हम कह सकते हैं, और बहुत ही सुंदर है, लेकिन एक्सप्लोर जो है मुझे नहीं लगता है कि वो लेवल तक हुआ है। सो इस इनिशिएटिव के द्वारा और ज़्यादा एक्सप्लोर होगा, और ज़्यादा लोगों के बीच में नोन होगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि जो लोकल टूरिज्म के सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, सब मिल के जो है काम करने वाले हैं। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड कंग्रेचुलेटिंग टू ईच वन ऑफ देम एंड विश देम ऑल लक। अपलिफ्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह की इनिशिएटिव से ही जो है अपलिफ्टमेंट होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, इट्स अ वेरी बिग इनिशिएटिव, और सबको मिलकर, सब मिलकर अगर काम करेंगे यहाँ पे, तो अंडमान और निकोबार का एक अलग ही नक्शा जो है देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छा लगेगा। और बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट, तो इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं खुद भी चाहूँगी कि फ्लरिश करे, और यहाँ के लोग फ्लरिश करे, ग्रो करे। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज वांट। थैंक यू सो मच।